Yes, what is the answer? When X increases by 27.27% and it becomes 9, what is the original value of X? Please note kar lo sab log. What is the original value of X? X increases by 27.27%. Please mute kar lo. X increases by 27.27 percentage and it becomes 98, then what's the value? First of all, you decide what is 27.2% means. Anybody in the chat box, what is 27.27%? 27.27%. 77. Okay, Shital. Can be right also. What you have taken 27.27 means what is the percentage कितना है बेटा? Right. Please बंद करो. Answer is 77. I think right. 77. Yes, right. I think. What others? करो please. ब्रेक में क्या करे? करना नहीं था क्या? कर नहीं. इंटरेस्ट ही नहीं आप लोगों को. चुपे चिल्ला के दिमाग खराब है. Okay, Aditya, right. What is the percentage? What is numerator and what is denominator? Can anybody write? What is numerator and what is denominator for 27.27? अब स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखें तो आपको याद रहता. Okay, हाँ, like this you are taken. Yes, right. If you don't know, एक जीरो ज्यादा हुआ क्या बेटा शीतल? देखो, like this also you can take. But if you remember the standard value, it would have been easier. आप ऐसा भी कर सकते हैं. हाँ, okay, it's up to you. Okay. So I think now the things are clear to you. Shall I go for the next one? So whenever there is increase in percentage, ratio can be calculated by denominator ratio to denominator plus numerator. And when there is decrease, so denominator is to denominator plus numerator. रेशियो मालूम होगा आपको. रेशियो मालूम है. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको नोट करो. और डिफरेंट एस्पेक्ट्स आई हैव शोन यू. And from that you can calculate what is the change. Now one equivalent percentage change, an important topic I will tell you now. Heading you write equivalent percentage change. Equivalent percentage change. So what is meant by this equivalent percentage change? What is meant by this equivalent percentage change? Equivalent percentage change means now X is increased by 11.11% and it becomes Y. Try to understand this one. This is very important one. X increases to Y by 11.11% and then Y decreases to Z by 14.28%. Y decreases by 14.2% and Z again increases to W 16.66%. So what we are interested is what is the change in X to W?
x से y को चेंज हो रहा, y से z को चेंज हो रहा, z से w को चेंज हो रहा। तो आपको क्या निकालना है कि व्हाट इज द चेंज इन x to w। Here x to y increase is there, y to z decrease is there, and z to w again increase is there. Z to w again increase is there. X to y increase is there, y to z decrease is there, and z to w again increase is there. So what is equivalent percentage change? I will tell you. Now x to y, it is increasing by 11.11%. 11.11% means in terms of fractions it is 1 by 9. Into 1 by 100, 1.11 into 1 by 100. 1 by 9. Don't remember. Please mute कर लो. 1 by 9. So x is to y increase हो रहा, तो initial value is 9, final value is numerator plus denominator. It is, so from x to y it is 9 is to 10. Thing is clear? From x to y the change is 9 is to 10. 9 is to 10. अच्छा, y to z में डिक्रीज हो रहा, कितना डिक्रीज हो रहा? 14.28%. y to z में डिक्रीज हो रहा, कितना डिक्रीज हो रहा? 14.28. 14.28 मींस 1/7 डिक्रीज हो रहा है, तो initial value is denominator and final value is denominator minus numerator, that is 7 minus 1, it is 6. समझ में आपको? देन Z2W में देखिए, Z2W प्लस 16.6। प्रणव प्लीज म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ ओके, इज देयर एनीबॉडी एल्स? प्लीज डिस्टर्ब हो रहा। देखो इधर Z से W इंक्रीज हो रहा बेटा, हाउ मच इट इज? 16.66। तो 16.66% कितना होता देखिए, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा मतलब ये 1/6, और 1/6 में इंक्रीज जब होता, स्टार्टिंग वैल्यू इज डिनोमिनेटर 6 और फाइनल वैल्यू इज 1 + 6 7. It means that the moral of all these things, what I want to tell is x to y is ratio 9:10, y is to z का रेशियो 7:6 और z to w का रेशियो 6:7. लेकिन we are interested in what is x is to w. What is x is to w? तो देखिए, मैं समझ में आया ना आपको यहां तक मैं क्या कर रहा हूं? दिस टॉपिक इज कॉल्ड इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज। यहाँ x से y को चेंज हो रहा, y से z को चेंज हो रहा और z से w को चेंज हो रहा। परसेंटेज में दिया आपको, तो मैं पहले उसको कन्वर्ट करता हूँ रेशियो में। रेशियो में कैसे कन्वर्ट करना मैं आपको बताया। कैसा कन्वर्ट करना? इनिशियल वैल्यू डिनोमिनेटर रखना, इंक्रीज हो रहा तो डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर रखना, डिक्रीज हो रहा तो डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर रखना। So now x is to y, y is to z, z is to w. So this is 9:10, 7:6, 6:7. I hope this thing is clear. If you have any doubts, you can ask in the chat box now. Now what I am interested is x is to w. You see here, x is to y is 9:10. I will write here. X, y, z, w लिख लो. X is to y is 9:10. It is given. Y is to z is 7:6. It is 7:6. And z is to w is 6:7. 6:7. Then the value, equivalent value है ना, हमको चारों के अगर से equivalent value आए तो हम रेशियो कर सकते हैं। तो equivalent value कैसा निकालना? x का रिलेशन equivalent value देखो, 9 into 7 into 6. These values you have to take. The values of x are 9 into 7 into 6. You are right. And then the values of y are 10 into 7 into 6. 10 into 7 into 6. And values of z are 10 into 6 into 6. And the values of w are 10 into 6 into 7. Like this, you have to take the values.
बराबर बोलता हूं, देखिए मैं आपको तीनों के रेशियोज निकालो, रेशियोज निकालने के बाद एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिख लो। एक्स और वाई का रेशियो 9:10 है, वाई और जेड का 7:6 है, जेड और डब्ल्यू का 6:7 है, 6:7 है। So now here, when it is the value initial values are concerned, so x के values है 9 into 7 into 6, you write here 9 into 7 into 6, और y के values है 10 into 7 into 6, 10 into 7 into 6, और z के values है 10 into 6 into 6, और w के values है 10 into 6 into 7। तो x के वैल्यूज निकालो, वी आर कंसर्न अबाउट x एंड w ओनली। x के वैल्यूज निकालो, करो कैलकुलेशन करो, और w के वैल्यूज निकालो। परसेंटेज चेंज इज w माइनस x बाई x इंटू 100, दैट इज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100 करो, तो आपको x टू w का वैल्यू कितना चेंज हो गया वो मिलता। और ये आंसर बोलो मेरे को चैट बॉक्स में करके। प्रोसीजर समझ में आया नहीं? देखो उसके बाद यहां पर आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही, तो एक इजी थिंग बताता हूं मैं आपको। x इज गिवन बाय, ओके श्रेयस, x इज गिवन बाय, प्लीज देखो इधर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल इनिशियल वैल्यूज, दैट इज 9 into 7 into 6, 9 into 7 into 6, एंड w इज गिवन बाय लास्ट मल्टीप्लीकेशन 10 into 6 into 7। ऐसा भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। ये कैसा आया, एक्चुअली ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये टेबल क्लियर होता। हमको जब 3-3 4-4 रेशियोज देते, इक्विवेलेंट वैल्यूज में कन्वर्ट करना पड़ता उनको। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो टाइम बीइंग हियर, जस्ट टू रिमेंबर, व्हेन 3-4 ratios are given, the initial value x is given by multiplication of initial ratios, and the last value w is given by multiplication of final, that is 10 6 7। इनिशियल इसमें 9 है, 7 है, 6 है, that is x। फाइनल यहाँ 10 है, 6 है, 7 है, that is w। so percentage change is given by w minus x by x into 100, w minus x by x into 100। you do this and tell me the answer। आइडिया क्लियर हुआ है सबको? ओके, एक और प्रॉब्लम देखेंगे। व्हाट इज द आंसर? somebody says has said 11.11%, is it right? ये मल्टीप्लाई करो, मैं कैलकुलेशन नहीं करा। 10 into 7 is 70 into 64 20, 9 into 6 54, 54 into 7 करो, जो भी आता करके यहाँ सब्स्टिट्यूट करो and tell me the answer। तो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से x आता, लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से w आता, w आता। यस सोनाली, यस 11.11%। हाँ, एक और वैल्यूज देखिए, x का वैल्यू 10% कम हो रहा, दैट इज डिक्रीजिंग बाय 10%। y का वैल्यू z को आ रहा 30% डिक्रीज हो रहा, और z का वैल्यू w को आ रहा 40% डिक्रीज हो रहा। सो व्हाट इज द इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज फ्रॉम x to w? इट इज ऑन द बोर्ड, सॉरी आई मीन ऑन द स्क्रीन, बट विदाउट देखे आप ट्राई करो। इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज, इक्विवेलेंट परसेंटेज चेंज, प्लीज ट्राई करो।
मी नंतर बोलतो बेटा, ऑनलाईन क्लास आहे माझा. ते काय डिसाईड झालं नाही बेटा, आज मीटिंग होऊन आज माहित होतं. तर अगोदर तू प्रॅक्टिकलचं चिंता कर अगोदर. वायवाचं ते थिसिस कंप्लीट करून मला मेल करा, मी पुढे नंतर चिंता करू. ओके ओके, मी नंतर बोलतो आता क्लासमध्ये. ओके, yes, anybody did answers? Yeah, somebody did. Concept not understood. प्राप्ती इथं बघा, प्राप्ती मी, I will tell you here, x to y किती चेंज होणार आहे? 10%. 10% म्हणजे काय? चांगला ऐक थोडं. 1/10. इज इट क्लिअर? कुठं न कळालं तेव्हा चॅट बॉक्सवर लिहून टाक. हा, y to z किती चेंज होणार आहे? 30%, कमी होणार आहे. तर 30% म्हणजे 30/100 which is 3/100. आणि z to w 40% आहे. 40% म्हणजे 40/100 which can be written as 4/100 to 2/5 पण लिहू शकतीस. हे कळालं काय प्राप्ती? प्राप्तीला लवकर प्राप्त होईना गेलं. You see, x to y is 10% means 1/10, y to z 30% means 3/10, and z to w 40% decrease means 4/10, which is nothing but 2/5. अगोदर सगळेजण एवढं कळालं काय सांगा मला. आता आम्ही ह्या फ्रॅक्शनला रेशो मध्ये कन्वर्ट करू. कसं कन्वर्ट करू? रेशो मध्ये कसं कन्वर्ट करावं मी काय सांगितलं तुम्हाला. डिक्रीज होणार तर डिक्रीज रेज टू डिनॉमिनेटर मायनस न्यूमरेटर. डी मायनस एन. इथं डी 10 आहे, एन 1 आहे, तर डी 10 डी मायनस एन इज 9. सगळे डिक्रीजच आहे तिथं. तर हे 3/10 मध्ये 10, 10 मायनस 3 7. इथं 2/5 आहे, 5, 5 मायनस 2 3. तर असं तुम्ही रेशोज लिहून घ्या प्राप्ती. रेशोज लिहिल्यानंतर एक्सचं व्हॅल्यू कसं काढायचं? इनिशियल मल्टिप्लाय करा. 10 into 10 into 5, 500 स्टार्टिंग व्हॅल्यूज. डब्ल्यू कसं करायचं? फायनल व्हॅल्यूज मल्टिप्लाय करा. 9 into 7 into 3, 9 into 7 into 3, हे 189. तो हे 500 घ्या, हे 189 घ्या. पर्सेंटेज चेंज इज इक्वल टू 189 मायनस 500 बाय 500. करा केवढं होतं बघा. ओके प्राप्ती, थँक्यू. कळालं काय सगळ्याला? हे कॉन्सेप्ट इक्वलंट पर्सेंटेज चेंज. ह्या मेथडला म्हणते सक्सेसिव्ह पर्सेंटेज डिस्काउंट. ओके श्रेयस, 62.2% ही सेइंग. हे केव्हा यूज करतो माहित आहे ना? आता आम्ही काही सामान विकलालो, ह्या महिन्यात 10% डिस्काउंट दिलो, तरी पण विकला गेलं. पुन्हा मी त्याला 30% देतो, तरी विकला गेलं. पुन्हा 40% डिस्काउंट देतो. असं करून डिस्काउंट देत जातो आणि विकतो. तर ओके सोनाली, तर तुम्हाला काढायचं आहे व्हॉट इज द पर्सेंटेज चेंज from the beginning to end, and this value is called equivalent percentage change, and this process is called successive percentage change or discount. Successive percentage change or discount. I hope concepts are very clear in this slide. Now I am going for next slide. Is it clear? पर्सेंटेज चेंज म्हणजे काय? रेशो कसं लिहायचं? पर्सेंटेज चेंजला इन्क्रीज झालं तर काय करायचं? डिक्रीज झालं तर काय करायचं? इन्क्रीज झालं तर डिनॉमिनेटर प्लस न्यूमरेटर. डिक्रीज झाला तर डिनॉमिनेटर मायनस न्यूमरेटर. असं करत जा. आणि हे थोडे प्रॉब्लेम्स पण मी सांगितलं तुम्हाला, त्यातनं इक्वलंट पर्सेंटेज चेंजचं टॉपिक सांगितलं. शॅल वी गो फॉर नेक्स्ट टॉपिक नाउ? यस, नेक्स्ट टॉपिक इन दिस सेन्स पर्सेंटेज ओनली. काही डाऊट असतं विचारा प्लीज. हे सगळं कॉन्सेप्ट आहेत. नेक्स्ट टॉपिक लिहून घ्या. प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तर प्राइस म्हणजे काय? मी साखर घ्यायला गेलो, 10 रुपीज केजी साखर आहे. असं तर होणार नाही, आता तर आमच्या काळात होतं हे 10 रुपये किलो. सो शुगर इज 10 रुपीज पर केजी. सो दिस इज प्राइस. सपोज तुमच्या घराला हर महीने आपको 6 केजी शक्कर लगता, तो कंजम्पशन कितना हुआ आपका? 6 केजी. तो आपका एक्सपेंडिचर मंथली शुगर पे कितना हुआ?
₹10 पर केजी के हिसाब से 6 किलो शुगर खा रहे आप, तो आपका एक्सपेंडिचर हो गया ₹60. सो हियर ₹10 per kg is price, 6 kg is consumption, and rupees is here expenditure. So expenditure कसा आला? Price into consumption is expenditure. Unit of price is rupees per kg. Unit of consumption is kg. Unit of expenditure is rupees. मतलब price चं numerator expenditure होणार, price चं denominator consumption होणार. तर आठवण ठेवा घ्या तुम्ही, प्राइस इंटू कंझम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. काय रेट आहे तुमच्या गाडीला? 10 लिटर पेट्रोल महिन्याला लागतंय, तर ₹80 लिटर आहे, तो प्राइस इज ₹80 पर लिटर. युअर कंझम्पशन इज 10 लिटर. युअर एक्सपेंडिचर इज ₹800 पर मंथ. तर like this concept you should understand what is price, what is consumption, and what is expenditure. See, you can take this similar to speed and distance. Speed and distance मध्ये कसं आहे बघा, speed into time is equal to distance. Speed into time is equal to distance, or speed is equal to distance by time. Got it? So speed into time equal to distance. Speed into time is equal to distance. So now price into consumption is equal to expenditure. Price into consumption is equal to expenditure. Expenditure. Okay, price into consumption is equal to expenditure. And here you see different cases are there. First of all, I will take case 1. केस 1 मध्ये काय बघा मी, प्राइस इज ₹10 kg, ₹10 किलो के हिसाब से मैं शक्कर ला रहा हूं, और कंजम्पशन मेरा है 6 किलो. तो मतलब मेरा एक्सपेंडिचर कितना हुआ? ₹60, क्योंकि 6 किलो ले रहा हूं मैं. प्लीज इसको अच्छी तरह समझ लो, जैसा वर्क एंड टाइम या स्पीड एंड डिस्टेंस में था वही कॉन्सेप्ट है यहां पर भी. अगर से मैं 7 किलो कंजम्पशन करा, 1 किलो ज्यादा किया अगले महीने में, तो मेरा कंजम्पशन कितना हुआ? देखिए 7, और प्राइस तो सेम है ₹10. तो यहां पर मेरा एक्सपेंडिचर हो जाएगा 70. मेरा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा? 70. ये समझ में आया आपको केस 1? तो प्राइस 10 है दोनों केसेस में. कंजम्पशन फर्स्ट टाइम 6 kg है, सेकेंड टाइम 7 kg है, तो एक्सपेंडिचर आपका 60 और 70. तो रेशियोज देखिए, प्राइस का रेशियो सेम है क्योंकि रेट चेंज नहीं हो रहा है. कंजम्पशन का रेशियो है 6:7. पहले 6 किलो था, 7 किलो, तो 6:7. एक्सपेंडिचर 60 और 70 रुपए हो गए, मतलब उनका रेशियो भी 6:7 है. तो इसका मॉरल क्या है? जब आपका प्राइस कांस्टेंट है तो ये दोनों कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते. प्राइस अगर से कांस्टेंट है तो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर दोनों भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते. इट मींस दैट इफ P is equal to constant, then C1 by C2 is equal to E1 by E2. Got it? If C1 by C2 is equal to E1 by E2. लिख लो बे, जल्दी लिख लो बेटा, फटाक से लिख लो. 2 minutes time I will give. Please take down. इंपॉर्टेंट थिंग लिख लो, बाद में स्लाइड्स तो आपको अवेलेबल हो जाते हैं, आप डिटेल नोट्स बना सकते चाहे तो, आपको इंटरेस्ट है तो, लेकिन एटलीस्ट आप जो जो इंपॉर्टेंट है वो तो लिख लो. और स्टडी मटेरियल में एटलीस्ट स्लाइड्स में, वीडियोस में तो आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप रेगुलर ही नहीं सुनते तो बाद में कौन सुनते बैठता, लेकिन स्लाइड्स में या नोट्स में किसी चीज की कोई जरूरत है तो आप पर्सनली भी मुझे पूछ सकते हैं, या ग्रुप में भी मैं डालो तो डालता हूँ. ग्रुप में मटेरियल बहुत हो रहा, किसी को याद नहीं आ रहा, कोई देख रहा नहीं, इसलिए मैं आपको इंडिविजुअल फर्स्ट चैप्टर के जीटी के नोट्स भी भेजा. शॉर्टली कल या परसों मैं आपको कॉम्पैक्शन के भी नोट्स भेज दूंगा. कोई भी चीज है आप पूछो. और मेरा जो गुरु मंत्र है याद रखो, आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेना ही है, ये मान के पढ़ाई करो. आपको क्या बनना है आपके ऊपर है. तो जब कभी भी प्राइस कांस्टेंट रहता तो क्या होता फॉर्मूला? सी और ई, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते एक दूसरे को, एंड इट विल गिवन बाय C1 by C2 is equal to E1 by E2. Now I will come for second case.
सेकेंड केस में क्या हुआ, अगले महीने शक्कर का रेट बढ़ गया, शुरू में 10 रुपीज था, फिर 11 रुपीज हो गया, लेकिन रेट बढ़ने से मैं क्या किया, कंजम्पशन सेम रखा क्योंकि पैसे मेरे को बचाने, तो यहाँ पर 6 केजी है तो यहाँ पर भी 6 केजी रखा, तो एक्सपेंडिचर यहाँ 60 आया और यहाँ 66 आया। तो आप रेशियोज देखिए, प्राइस का रेशियो 10:11, कंजम्पशन का रेशियो 1:1, एक्सपेंडिचर का रेशियो 10:11। मींस जब कभी भी आप कंजम्पशन कांस्टेंट रख रहे तो प्राइस और एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते, प्राइस और एक्सपेंडिचर क्या हो जाते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते। दैट इज इफ C इज कांस्टेंट देन P1 by P2 is equal to E1 by E2. If P1 by P2 is equal to E1 by E2, if C is constant, P1 by P2 is equal to E1 by E2. ये भी सेकंड फॉर्मूला लिख लो प्लीज। देखिए यहाँ पर हम प्राइस कंजम्पशन कांस्टेंट रखे, पिछले में प्राइस कांस्टेंट रखे थे, अब कंजम्पशन कांस्टेंट रखे सेकंड में। अब थर्ड में क्या करेंगे, हम प्राइस को 10 बनाएंगे और 12 बनाएंगे, कंजम्पशन 6 और 5 बनाएंगे, रेट बढ़ने से थोड़ा कम करेंगे कंजम्पशन, तो यहाँ एक्सपेंडिचर सेम आ रहा। तो रेशियोज देखिए, रेशियोज में जब कभी भी प्राइस का रेशियो 5:6 है, कंजम्पशन का 6:5 है और एक्सपेंडिचर का 1:1 है। इसका मतलब जब कभी भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता, प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको, कंजम्पशन और प्राइस इनवर्सली, ये ज्यादा होगा तो कंजम्पशन कम होता, कम होते ही ज्यादा होता। मतलब आप सपोज करो पेट्रोल पंप पे जाते, खैर आजकल वो डिजिटल हो गए पेट्रोल पंप में आपके रीडिंग्स, तो 1 लीटर 2 लीटर ऐसा नहीं खरीदते आप, 100 रुपए दे देते, 100 रुपए का पेट्रोल डालो। अगर से रेट 70 था तो आपको ज्यादा पेट्रोल मिलता, रेट 80 होने के बाद आपको 100 रुपए में कम पेट्रोल मिलता। मतलब रेट बढ़ने के बाद कम पेट्रोल मिलता, रेट कम रहे जब ज्यादा पेट्रोल मिलता। यहाँ पर आपका नोट 100 रुपए का कांस्टेंट है, आपका 100 रुपए का नोट जो है वो कांस्टेंट है। What is the moral of this one is, when expenditure is constant, then price and consumptions are inversely proportional to each other, whereas in the previous two cases they were directly proportional to each other, directly proportional to each other. Now they are inversely proportional to each other, inversely proportional to each other. I hope these three cases concepts are very clear to you. The most important thing is, when expenditure is constant, price and consumptions are inversely proportional to each other, inversely proportional to each other. कुछ डाउट है तो पूछो ये तीनों केसेस में। I will go for one problem now. I will go for one problem now. Okay? What is the question now? The question is, take down please. If the price of petrol is increased by 20%, if the price of petrol is increased by 20%, if the price of petrol is increased by 20%, then by what percentage my consumption will reduce to maintain same budget? क्वेश्चन लिख लो प्लीज, और आप कुछ कर सकते तो कोशिश करो, नहीं तो मैं तो करता हूं। If the price of petrol is increased by 20%, if the price of petrol is increased by 20%, then by what percentage my consumption will reduce to maintain the same budget? मतलब आप एक 500 का नोट देके पेट्रोल डाल ले रहे, तो 20% अगर से
इंक्रीज हो गया है पेट्रोल का रेट, तो आप 20% बढ़े, जब आप सेम एक्सपेंडिचर रख रहे हैं तो आपका कंजम्पशन कितना परसेंटेज कम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका परसेंटेज कितना कम आएगा, आपका परसेंटेज कितना कम आएगा। प्लीज थिंक अबाउट इट, आई विल सॉल्व इट। हेलो, हाँ एक दोन दिवसात मी जरा क्लासमध्ये आता फोन करतो तुला 2 मिनिट। थिसिस तर रेडी ठेवलात ना? बाइंडिंग काय नेसेसरी नाही अजून, पण थिसिस तर पूर्ण रीडिंग सोडिंग कॅल्क्युलेशन रेडी आहेत ना? हाँ ओके ओके, मी तुला कॉल करतो जरा क्लास आल्यानंतर। देखो बेटा यहाँ पर, इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मतलब प्राइस जो है 20% इंक्रीज हो रहा, 20% इंक्रीज हो रहा, मतलब 1/5 इंक्रीज हो रहा फ्रैक्शन। जब 1/5 इंक्रीज हो रहा तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू कैसा निकालते आप? इनिशियल वैल्यू 5 रहेगा, इंक्रीज हो रहा इसलिए 5 + 1 6, तो प्राइस इज इंक्रीजिंग 5 to 6। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या? देखो ये बिल्कुल हो गए, तो मैं आपको फिर रिपीट करता हूं, थोड़ा आपको शुरू शुरू में मुश्किल लगता है ये, लेकिन ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है परसेंटेज के लिए। पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ रहा, 20% बढ़ रहा है, मतलब 1/5। अब ये बोलो 20% 1/5 कैसा हुआ? इंटू 1/100 करो परसेंटेज टू फ्रैक्शन के लिए, मैं लिखाया था आपको, या याद रखो 20% भी 1/5, कोई भी करो। जब 1/5 फ्रैक्शन में आया, जब 1/5 फ्रैक्शन में आया तो इनिशियल वैल्यू 5 है, फाइनल वैल्यू कितना बनेगा? 5 + 1 6। इंक्रीज वाला इसलिए ऐड करना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर, यही तो कॉन्सेप्ट है पिछले कॉन्सेप्ट स्लाइड का। तो प्राइस कैसा चेंज हो रहा है आपका? 5 शुरू में है और 6 हो रहा है। लेकिन यहां पर एक सेंटेंस बोला उन्होंने, माय कंजम्पशन विल रिड्यूस टू मेंटेन द सेम बजट, मतलब आपका बजट सेम है, एक्सपेंडिचर का रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो आपको एक्सपेंडिचर सेम रखना है 1:1। आपको एक्सपेंडिचर क्या करना है? सेम रखना है 1:1। देखिए जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, मैं आपको क्या बोला था, प्राइस और कंजम्पशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब P1/P2 इज इक्वल टू C2/C1, P1/P2 इज इक्वल टू C2/C1। तो P5 और 6 है, तो C क्या बनेगा? इनवर्सली मींस 6 and 5 बनेगा। समझ में आ रहा आपको? प्राइस 5:6 के रेशियो में था, तो सी क्या बनेगा? कंजम्पशन 6:5 के रेशियो में बनेगा। तो अब मुझे परसेंटेज चेंज कंजम्पशन में कितना हुआ वो निकालना है। तो कंजम्पशन का रेशियो क्या है? 6:5, मतलब शुरू में 6 लीटर था, अब हो गया 5 लीटर, मतलब कितना कम हो गया? 1 लीटर कम हो गया। किसके लिए 1 लीटर कम हो गया? 6 लीटर के लिए 1 लीटर कम हो गया। तो 6 को 1 लीटर कम हो गया, तो 100 को कितने लीटर कम हो गया? 6 को 1 लीटर कम हो गया, तो 100 को कितने लीटर कम हो गया? तो 100/6, इट इज 16.66%। मतलब जब आपका प्राइस, किसका प्राइस? पेट्रोल का प्राइस 20% ज्यादा हो रहा, तो आपका पेट्रोल का कंजम्पशन 16.66% कम हो रहा है। दिस इज द क्वेश्चन। ये शुरू में आपको थोड़ा मुश्किल लगता है, ये कैसा करना आपको प्रॉब्लम लगता, बट यू इफ यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वाइज, नो दिस इज द इजीएस्ट मेथड। क्वेश्चन लिख लो, फिर एक बार मैं आपको ब्रेक के बाद रिपीट करता हूं, पहले लिख लो आप, 2 मिनट्स टाइम आई विल गिव यू, टेक डाउन दिस क्वेश्चन। एक दो और प्रॉब्लम्स में हम करते गए तो आपको क्लियर होते जाता। लिख लो प्लीज, डाउट है तो पूछो, फिर रिपीट करता हूं, हो गए तो।
गॉट इट? आइडिया 16.6% कैसा आया मालूम है? तो एक मैं आपको ब्रेक आता, अब ब्रेक में एक होमवर्क देता हूं। अगर से पेट्रोल का प्राइस